Yes, we are live. Good evening and welcome to episode 9 of Society Behind Wow. A special episode today on LGBT community with none other than Sonali Dalviji from Pune. Wonderful. I really am amazed with what Shobha Arya has created. And we are today under the banner of Society Behind Vow. And I am so feeling so blessed to be here and to host this session. So thank you, Shobha Arya, for giving me this opportunity. And let's go over to Sonali Dalvi. Sure. Uh, Na- yeah. Yes, thank you so much for calling me and giving me such a wonderful opportunity to come and talk over here. क्योंकि पहली बात तो ट्रांसजेंडर्स को कोई बुलाता नहीं है और बुलाते हैं तो उनका कोई सुनता है नहीं. नहीं हम सुनेंगे सोनाली जी हम सुनेंगे भी और it is our privilege to have you with us. I must say that. Absolutely. So it needs a human heart to understand a humanity. Absolutely, well said. So, Sonali belongs to the LGBT community who is tirelessly putting efforts in constantly raising voice for transgender community, for having equal rights for them in every best possible way. And to add feather to the cap, she is an MBA in finance. Oh my God, and an excellent dancer. Sonali ji has also been a TEDx speaker as well. So, Sonali, starting with you, let me ask you a first very important question, which is about the word transgender. Transgender is an umbrella word. True. And what and how do you define this transgender? Transgender people have so much of myth and misunderstanding about transgender. Uh, Especially in India, people think like transgender is only a Hijra community, which is not true. Transgenders, in that terms, like we have trans man, trans women, androgynous, drag queen, drag king, non-binary people. So we need to know about it. So, Sonali, what transgender, trans man, trans woman, and what are the other two you said? Yes, non-binary people, Yeah. fluid people, Mm-hmm. then cross-dresser, drag queen, and drag king. So Okay. people didn't knew about it. Mm-hmm. Yeah. So Uh, trans women are like from male to female, and trans men are from female to male. mm-hmm. Uh, they are called. They are also a transgenders. Okay. Okay. So that is a big umbrella under the word transgender, right? People don't know. People just know like only the Hijra community is only a transgender, which is not true. If I Mm-hmm. consider myself as a trans woman and I want to live completely as a woman, so I'm Mm-hmm. also a transgender woman. Okay. Great. Thank you so much. And over to Anu. Yes. So Sonali, going further slightly before I go into the question that's actually on my mind, could you throw a little bit more light on these different sections that we're talking about? Because I think a lot of people are not very aware. So could you elaborate a little bit on what you were talking about 2 minutes back? Really? So transgender, like especially we never thought like about trans. Nobody knows, especially in my childhood. Like I didn't knew about my sexual orientation, what is my gender and what is my sexual orientation. So only those days, like only the Doordarshan was there, and whatever my school teacher and tuition teacher used to teach me, that much knowledge I have. I didn't knew what I am, like who I am. So I was not fixed in the male boxes also, and I was not fixed in the female boxes also. So I always feel like who I am, and I will always have a curiosity like who I am, and today I got to know each and everything. Mm-hmm. Wow, brilliant. So, Sonali, take us through your childhood that you're talking about, and when did you and when your parents came to know and you realized that you're a transgender, how did that mold your entire journey, further? What really happened in your life?
At the age of 12, my biological mother passed in an accident, and I'm the elder one at my home, and I have one sister, one brother. And those days, in my journey, I will say, I will always say I was never privileged enough to have a beautiful childhood, but instead of crying on life, I decided to face life ahead on. Wow. रो, रो के कुछ नहीं मिलता है, अगर रो के हर चीजें मिलती तो मैं एक हर सेकंड में रोते बैठती थी. एंड आई ऑलवेज सेज माय टीयर्स आर मोर एक्सपेंसिव देन डायमंड्स एंड प्लैटिनम. एक एक गिरेगा तो कितना भारी में गिरेगा ना. हाँ बिल्कुल. जी, बिल्कुल बिल्कुल. तो बचपन में मतलब बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते थे. सो बचपन में ऐसा था कि हम लोग जब कोई आते हैं, पेरेंट्स आते हैं या सिबलिंग्स आते हैं, हम लोग बच्चों को बताते हैं कि बेबी ये डांस बोल के करके दिखाओ या ये पोएम बोल के दिखाओ. तो बच्चे भी उसको बहुत एक्साइटमेंट से ही करते हैं. वैसे ही मेरे अंकल और आंटी आए थे और मुझे बोल रहे थे कि कुछ करके दिखाओ. तो मैं from the day first I never realized I'm different from others. The society realized me I'm different from others from the day first. और मैं अंदर गई, मुझे पहले दिन से मुझे लगता था कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे लड़कियों जैसा ही रहना है और मैं लड़की ही बनना चाहती हूँ. I was born feminine, and was it my fault that I was born feminine? The nature has created me the way I am. So Absolutely. I just want to be, I want to be. So उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मतलब मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ और मैं वैसी रहूंगी. तो बचपन में मेरे अंकल और आंटी मेरे घर पे आए थे और मुझे बोल रहे थे कि कुछ करके दिखाओ. मैं अंदर गई, लिपस्टिक लगाया, ज्वेलरी पहनी, एंड आई स्टार्टेड डांसिंग. द डॉक्टर, पहली बात तो ट्रांसजेंडर्स लोगों को पता नहीं है. आई वॉज born एज अ मेल, बट माई सोल, माई माइंड, माई ब्रेन वॉज completely of a female. So how somebody can change my soul and my mind and my brain? So it was very difficult for me. So I was when my uncle came to me, I literally started dancing like a feminine, a beautiful feminine lady. तो वो लोग जोर जोर से हंसने लगे थे कि मतलब ये लड़का लड़कियों जैसे क्यों नाच रहा है. एंड आई थॉट लाइक दे आर अप्रिशिएटिंग माय डांस. हमारे यहाँ पे ये होता है ना कि बॉयज ने क्रिकेट, फुटबॉल ये सब खेलना चाहिए और लड़कियों ने डांसिंग, सिंगिंग करना चाहिए. आज भी मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या हम सच में इंडिपेंडेंट हो गए हैं क्या? स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब हमें समानता मिलेगी, और समानता मुझे घर से ही चाहिए थी. वो शुरुआत मुझे घर से ही चाहिए थी. इसलिए वो लड़ाई मेरी घर से ही थी, क्योंकि स्टार्टिंग जो जर्नी हर बच्चे की होती है वो घर से होती है. तो मैंने वहां से ही शुरुआत की. और फिर मैं बचपन में डांस की वजह से मुझे बहुत मारा पीटा गया था. उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आता था मेरे साथ ही ऐसा ये सब चीजें क्यों हो रही है. क्या मैंने कुछ गलत किया है या मैं कुछ गलत हूँ. So now I can say proudly, like I was not trapped in a wrong body, I was trapped in a wrong society which was injected by Britishers. तो मैं गलत समाज में नहीं, मैं गलत शरीर में नहीं, मैं गलत समाज में इतने साल सरवाइव करी थी. और उसके बाद में बहुत डिफिकल्टीज हुई. मतलब आई केम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, और सबसे बड़े जीव जंतु कीड़े मेरी लाइफ में थे वो रिलेटिव्स थे. मतलब मुझे लगता था मेरी है, पर बहुत लोगों के होते. घर का नहीं देखते पर दूसरों का बड़ा झांक के देखते. इसका बच्चा ऐसा है, उसकी बेटी ऐसी है. तो मेरे घर पे भी यही सेम था कि आपका बच्चा लड़का होते हुए भी लड़कियों जैसा क्यों बिहेव करता है, या ऐसे क्यों चलता है, ऐसे क्यों बोलता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन माय पेरेंट्स हैव स्पेंडेड सो मच ऑन माय मेडिकल ट्रीटमेंट. रोज मुझे घंटों घंटों क्लिनिक में जाना पड़ता था. वहां पे डॉक्टर ट्रीटमेंट करते थे, मुझे मेल हार्मोन्स के इंजेक्शन देते थे. कि मेरे डैड हमेशा बोलते थे कि मेरा लड़का लड़का होते हुए भी लड़कियों जैसा क्यों बिहेव करता है. तो ये सब चीजें थी. उन्होंने मेल हार्मोन्स के इंजेक्शन देने चालू किए, बहुत सारे वाइग्रा, ये वो बहुत सारी चीजें. और उस मेडिसिन से मुझे बहुत तकलीफ होती थी. मैं तो नहीं बदली, जैसी थी वैसी हूँ, अभी भी ऐसी हूँ. और उसके बाद में मतलब डॉक्टर ट्रीटमेंट्स कुछ नहीं हो गए. देन दे स्टार्टेड taking me to this tantric people, Baba people. Oh my God.
तो मेरे रिश्तेदारों ने बोला कि ठीक है, दवा ब्लेसिंग्स और मेडिसिन ये दोनों का मेरे ऊपर असर हुआ था, पर वो भी कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद में मुझे आज भी मुझे याद है वो जब मेरे पापा मुझे कर रहा है, तो वो तांत्रिक बोलने लगा कि मतलब ऐसे बहुत लोगों को हमने ठीक किया है, आज की रात आपका बच्चा यहाँ पे छोड़ के जाओ, कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं तो ठीक हुआ, आई एम कम्प्लीटली नॉर्मल, तो ये क्या मुझे ठीक करेगा। तब मैंने पहली बार मेरी लाइफ में आवाज उठाई कि मतलब मेरे पापा को बोला आप मुझे खत्म कर दो, मार दो, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक द शिट, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन। आप जितने जिद्दी हो उससे कई ज्यादा मैं भी जिद्दी हूँ। सो हूँ तो आपकी बच्ची हूँ, आपका ही ब्लड है, तो मैं भी ये नहीं कर सकती। पहली बार मैंने लाइफ में आवाज उठाई थी, और उस दिन मैंने ठान लिया आई विल गिव आई विल गिव अ स्टेटस ऑफ इन माय लाइफ एज अ क्वीन। मैं अपनी जिंदगी एक रानी के जैसे, एक क्वीन के जैसे मैं जीना चाहती थी। तो उसके बाद पर मुझे प्यार चाहिए था, क्योंकि मेरी माँ के गुजर जाने के बाद में मुझे प्यार नहीं मिला। वो माँ का आंचल कुछ पल के लिए था, वो भी मेरे, वो साया वो भी चला गया। उसके बाद में मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्न आया, जो मेरे पापा की सेकंड शादी हो गई थी। स्टेप मदर आई। मैं पहले दिन बहुत डर गई थी कि मतलब हाउ विल माय स्टेप मदर विल रिएक्ट मी। मैं उसके सामने खड़े रहने को भी बहुत डरती थी कि कैसे बोलूं, क्या बोलूं। बट मेरी स्टेप मदर लाइक उन्होंने मतलब पहली नजर में देख के समझ गई ये ट्रांस लड़की है और इसको बोल्ड वुमेन बनने की बहुत चाह है। तो मेरे जो जो चीजें मुझे चाहिए थी वो मेरे स्टेप मदर ने की। मेरे एक दिन मुझे आज भी याद है, मेरे स्टेप मदर ने मेरे पापा से कहा कि सोनाली जैसी है उसको वैसे ही रहने दो। What she wants, she just want to enjoy her femininity now. She just want to live with her femininity now. So let her live as the way she wants. So she just came like a fairy in my life. So I always says like I'm the real life Cinderella. Cinderella was never behind the prince. She just want to wear a fairy dress and she just want to go for night out. Just Right. so let the prince follow me, है ना। तो ये ये लाइफ में टर्न बहुत बड़ा टर्न था मेरी लाइफ में कि मुझे एक्सेप्ट करने वाला, मुझे चाहने वाला, मुझे समझने वाला कोई तो चाहिए। सो आई ऑलवेज सेज लाइक behind every successfully women there is also a woman like Shobha Arya ji, like थैंक so यू many. सो मच। सोनाली जी, एक और सवाल यहाँ पर, जब आप की ये जर्नी चालू थी वेयर योर पेरेंट्स, योर डैड यूज्ड टू हिट यू बिकॉज ऑफ द डांस, तो Yes. आपके भाई बहन सिबलिंग्स इन्होंने कुछ सपोर्ट नहीं किया? देखो क्या होता है कि मतलब पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय फादर वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द रियलिटी। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो जिस डांस की वजह से मुझे मारा पीटा गया था, जब मेरी स्टेप मदर का मुझे सपोर्ट मिला, तब मैंने सोचा कि मतलब ठीक है, मुझे अभी मेरी स्टेप मदर का सपोर्ट है, मैं जरूर कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगी। मैं कैसी खड़ी रहूं, मेरी हैप्पीनेस के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं और क्या नहीं। और उस दिन मैं मुझे ये था कि कैसे भी करके इनको बताना जरूरी है कि मैं ऐसी हूँ। तभी मैंने बच्चों को एट द एज ऑफ आई थिंक लाइक 9th स्टैंडर्ड आई स्टार्टेड माय डांस एकेडमी। तो मैं बच्चों को डांस क्लासेस, ट्यूशन सिखाने चालू किया, और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट की थी। Wow. वाओ, सुपर। हाँ। तो वहां से आज भी मेरे स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके बोलते थे लाइक योर सोनाली, लाइक योर माय गुरु, योर माय टीचर एंड योर माय इंस्पिरेशन। एंड बचपन से लेके आज तक तुमने मुझे बहुत डांस सिखाया, ये सिखाया। तो बहुत सारे चेंजेस मैंने, बहुत यादें हैं मेरी लाइफ में। डेफिनेटली, डेफिनेटली। Yeah. Sonali ji, please do take us through the challenges that the transgender face
when going to schools and colleges and in the education field, मतलब as a community जब आप realize करते हो और school में admissions मिलने में दिक्कत होती होगी, या what is the experience of your education as a child and after you've grown up? या सो एजुकेशन में प्रॉब्लम कहाँ आती है जब हमें हमें कहीं पे भी मतलब जेंडर इक्वालिटी के बारे में ना बचपन में ना स्कूल्स में ना कॉलेज में कोई नहीं सिखाता है हमें. We just know like male and female and what about others, what about transgenders. So हमारे बारे में कोई बात करने, जब हम पढ़ेंगे तब हम समझेंगे और जब हम समझेंगे तभी हम एक्सेप्ट करेंगे, है ना. तो बिल्कुल. हाँ, तो बचपन में जब एक बच्चा, एक ट्रांस बच्चा, बिकॉज आई वाज बोर्न एज अ मेल बट आई वाज नॉट, my soul, my mind was completely of a female and I was not supposed to allow to go in and use the female washroom. So I used to go in male washroom और जो bullying harassment होता है वो टॉयलेट्स में होता है ट्रांस बच्चों के साथ. एक तो समाज में एक तो हमारे यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट नहीं होता है स्कूल्स और कॉलेजेस में. ये बहुत सालों से मैं डिमांड करी हो, एप्लीकेशन करी हो कि ट्रांस बच्चों को स्पेशली एक जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट चाहिए और हमें भी पढ़ना है, हमें भी आगे बढ़ना है. बिल्कुल. सेम लाइक गर्ल्स बॉयज, इवन वी want to be educated and we want to live a completely normal life. या Definitely. हाँ, तो पहली बात तो एजुकेशन में ये होना चाहिए कि बच्चों को जेंडर सेंसिटाइजेशन और जेंडर एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ना चाहिए, हमें बताना चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए उसके ऊपर. लेकिन आपके जो स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स रहते थे क्लास में और टीचर्स, हाउ वुड दे ट्रीट यू डिफरेंटली देन अदर स्टूडेंट्स? When I used to go and play with the boys used to say like, they used to tease me like, you're so feminine and you're not a boy. And लड़कियों में जाती थी तो लड़कियां बोलती थी मतलब तू लड़की भी नहीं है. तो वो लोनलीनेस, अकेलापन बचपन से था. बट लकी मी, टचवुड, लाइक माय टीचर्स वाज वेरी सपोर्टिव, दे अंडरस्टैंड्स मी. सो my close friends was my teacher and principal, those who are inspiring and always being very supportive to me. So maturity does not come from the age, it comes from the experience. So बचपन में मुझे हमेशा जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे वो मेरे से एल्डर ही थे और जो मुझे समझते थे, जो मुझे जानते थे, तो वो बहुत मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट था. तो मैं एक सवाल पूछूंगी आपसे. आपने कहा कि आप बहुत लोनली थे और ज्यादा बड़े लोग जो थे वो आपसे उम्र में जो बड़े थे वो आपकी हेल्प के लिए आए. तो ये लोनलीनेस जब बचपन में होती है, ये लोनलीनेस कैसी होती है, आप लोगों को बता सकती हैं? इसका Yes. मतलब क्या है, इसका एहसास क्या होता है? क्योंकि अक्सर बचपन में लोग लोनली नहीं होते हैं. यस. सो बचपन से पहले दिन से दिखाया जाता है कि आप डिफरेंट हो, आप अलग हो. ये हमेशा बताया जाता है क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि बॉयज, लड़का है तो लड़के जैसा ही बिहेव करो, लड़की है तो लड़की जैसा ही बिहेव करो. ये हमारे इंडियन कल्चर में है. बट like if you go in other countries, there are so many terms about, in US, in Western countries, there are so many gays, lesbian, bisexuals. So ये सब सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में और जेंडर डाइवर्सिटी के बारे में हमें और भी पढ़ना चाहिए, हमें समझना चाहिए वो लोगों को. ये बहुत जरूरी है. लोनलीनेस तो हमेशा इसकी वजह ये है कि हमें पता ही नहीं कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है क्या एग्जैक्टली. बहुत सारे लोग, एजुकेटेड लोगों को ही समझ में नहीं आता है कि एलजीबीटी है क्या, तो नॉर्मल लोगों को समझ में क्या आएगा. बिल्कुल, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है सोनाली जी कि एलजीबीटी बोलो या ट्रांसजेंडर बोलो, लोगों को पता ही नहीं है. उनको एक ही डेफिनेशन पता है कि ओके दिस इज अ ट्रांसजेंडर, लेकिन आगे क्या, यस. यू नो, उनको वो पता नहीं है. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन आई फील एंड अनु वुड एग्री विथ मी that it is very important to educate the society and bring them the dignity that they deserve, because they are also humans and they also carry a human heart with them. Agree, Anu? Absolutely. In fact, in our meta community, we have transgender, and we are very, very aware of it, and we speak about it very openly. So I'm very, very
That's what I said. And we have this beautiful person called Sammy in our community. So, you know, we've been exposed to it, but I completely agree that in general, people don't know. And even after, and my true confession, even after knowing Sammy, I think that's where it ends. We did talk a lot about it on the stage, but after that, what? After that, what? So I would say that this is one area where when we don't know about the transgenders, we are actually secluding ourselves from a very privileged experience, an experience that can enrich each and every child on this planet Earth. So Absolutely. I really feel, that's why I said I started my talk by saying I feel blessed today to be able to talk to you because, yeah, I mean, it's not just that, and you actually rightly said it's educated lobby also don't know because not because they can't read about it, but because True. they think they really don't know what they don't know. So it's like really shameful and really, how do you say, uh, they haven't touched, like you said, मेरे रोने की एक एक भाव काफी महंगा होता है. There would be pearls and platinum and real solitaires falling down. But you know what, Sonali, you didn't say is that knowing you would be as precious as knowing a solitaire. And Absolutely. are leaving that behind and they're moving on with many other things. So real privilege. And I'm going to go from here to this question. I believe you have, you know, bagged 250 awards. Yes. Wow. तो ये जर्नी कैसी थी? What were these 250 awards about? और जब सबसे पहला आपका अवार्ड आपके हाथ में आया तो कैसा महसूस किया होगा आपने? Uh, I want to know about it. Thank you. yeah. सो अवार्ड लाइक अवार्ड के बारे में डेफिनेटली बोलना चाहती हूँ कि पहला अवार्ड मेरी लाइफ में जो मिला, बहुत सारे अवार्ड मिले थे। उसका रीजन ये था, मतलब आई कंप्लीटेड माय एजुकेशन, आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन फाइनेंस, बट उसके बाद में ये था कि मुझे जॉब कोई नहीं दे रहा था, काम नहीं दे रहा था। I went to so many corporate companies those days. I still remember how difficult it was for me to go and talk to the corporate companies, and nobody was giving me the job opportunities. और फिर मैंने बहुत सारी कंपनीज में ट्राई किया, और वहां पे लोग बोलते थे आप ऐसे क्यों चलते हो, ऐसे क्यों बोलते हो, आप लिपस्टिक क्यों लगाते हो, नेल पेंट क्यों लगाते हो, बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें होती थी। और उसके बाद में बहुत मुझे काम करने की बहुत जरूरत थी, मुझे काम करना बहुत पसंद है। Then I met a transgender who works in an NGO, and she told me like, "Can you work in our NGO as a volunteer, or would you like to work with us?" And मैंने कहा ठीक है, मतलब community के लिए काम करना है तो definitely I will work for that. और मुझे पहले दिन से ये था, नहीं मुझे कुछ ना कुछ मेरी कम्युनिटी को करना है। कि जब मेरी लाइफ की जर्नी में, ठीक है, मुझे पेरेंट्स सपोर्ट मिला, मुझे सब कुछ, आई वाज प्रिविलेज इनफ टू हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली एंड एवरीथिंग, बट एवरीवन वाज नॉट दैट प्रिविलेज इनफ। No. सो मैंने बहुत सारी ट्रांसजेंडर्स थी जिनको फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती थी, उनको एजुकेशन नहीं था, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी। और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि कैसे मैं उनको मेन स्ट्रीम में लाऊं, और उनको मैं कैसे अपनी जो समाज का ही हिस्सा है। वी आर नॉट एलियंस विच केम फ्रॉम अनदर प्लैनेट, वी केम फ्रॉम द सेम होम वेयर फ्रॉम द सोसाइटी केम, है Ali, ना। अगर आप alien भी थे, let's assume for a minute, अगर आप alien भी थे who came from another planet, I think that's also okay. What's the big deal? It would have been very beautiful, like I would love to. What's the big deal? Yeah. Being different is not a big deal. But what's interesting is when you call yourself an alien, I can hear over there that's probably how you got treated. Yes. So people from the day first, I started working for transgenders, how to bring them in the mainstream. I did the Pune's India's first transgender marathon, और जो बचपन में Wow. मुझे हेल्थ के लिए जो चीजें मुझे मुझे जो जो चीजें मुझे नहीं मिली ना, वो हर चीजें मैं मेरे बच्चों को देके जाऊंगी। यू नो, जिस चीजों के लिए मैं तरसती थी ना,
वो सब चीजें मैं दूंगी उनके लिए। एंड आई स्टिल रिमेम्बर लाइक जब मैं पुणे में ट्रांसजेंडर मैंने मैराथन किया था, 5,000 हेटेरोसेक्सुअल सोसाइटी फैमिली केम एंड सपोर्टेड मी, एंड आई टुक 100 ट्रांसजेंडर्स ओवर देयर। तो बहुत सारी ट्रांसजेंडर्स बहुत क्यूरियस थी, लाइक लोग हमारा मजाक बनाएंगे, लोग हंसेंगे हम पे, क्या होगा मैराथन में। मैंने कहा देख, हम पास तो होगी या फेल तो होगे, पर एग्जाम देना ही है। ये मैंने लाइफ में पहले हमेशा से मेरा ये था कि एग्जाम देना ही है। तो हम लोग गए और वहां पे बहुत सारी ट्रांसजेंडर्स, लाइक वी रन 25 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स, एंड आई वाज वेरी हैप्पी, लाइक what I want that I can give it to everyone. So उसके बाद में मैंने बचपन से मुझे ये था, जिस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हमें बाहर निकाला गया था, मैं उसी कम्युनिटी के अंदर मेरी समाज को, मेरी कम्युनिटी को कैसे लेके जाऊं। तो पुणे में जो दगड़ूशेठ गणपति है, तो वहां पे मैं हर साल ट्रांसजेंडर्स को लेके पूजा करवाती हूँ। पूजा वॉज नॉट माई एम वॉज लाइक, जो मेरे समाज को हमेशा बाहर निकाला गया था, उसी समाज को मैं वापस कैसे लाऊं। तो इसलिए मैं हर साल ट्रांसजेंडर्स को पूरी वीआईपी ट्रीटमेंट देके, और उनको जो द ट्रांसजेंडर्स हु डू बेगिंग ऑन द स्ट्रीट्स एंड डू सेक्स वर्क एंड ऑल, सो I call them everyone. I call the cops and the bouncers and the media, and I always says like, you're the star. Like, aaj aap star ho. And I always says like, we each and every person is a star. We all are stars and we deserve to twinkle. है ना? Correct. But what was your first award, Sonali? अवार्ड में तो मेरे अवार्ड के बाद, तो उसके बाद में ये सब चीजें करते करते मुझे अवार्ड मिला। And I still, but the special award in my life was I went in one award function. I went with my dad, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, और मैंने मेरे पापा के लाइफ में कभी आंसू नहीं देखे। I never saw one tear in my dad eyes. They was always ashamed of me just because I'm born feminine, and उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना था ये सच्चाई को। पर जब मुझे अवार्ड लेते टाइम मेरे पापा ने देखा, that day he hugged me, and I saw one tear in my dad eyes, and that day they have accepted me as a daughter, जो मेरा बचपन से सपना था। हर लड़की का सपना होता है कि मैं एक पापा की परी बनूं। Every girl wants to be a daddy's girl. तो वो मेरा ड्रीम था, वो मुझे बहुत स्पेशल था मेरे लिए। वो अवार्ड मेरे लिए सबसे बड़ा जिंदगी का अवार्ड था। Wow, brilliant, beautiful, beautiful. Yes. Yes, Sonali ji. It's very touching to hear all this. Very touching. Yeah, every girl is a daddy's girl, I will say. Like, Yes, yes. परी हूँ मैं। yes, definitely. सोनाली जी, बहुत सारे मतलब इस पूरी दुनिया में, सोसाइटी में ये मिथ है कि फैक्ट है, आई डोंट नो, ओके, बट people say that no one has ever seen a transgender funeral. Can Yes. you please let us know about that? मतलब आप लोग का कुछ different होता है नॉर्मल लोगों से कि क्या होता है? This is all myth, I will say. At the age of 12, I joined the Hijra community, and my guru was a sex worker in red light area. I still remember. She is no more now. She passed away 5 years before she suicide. और मुझे आज भी वो दिन याद है कि मतलब जब मेरी गुरु गई, पास अवे हो गई थी। आज भी मैंने कभी ये नहीं दिखा कि किसी औरत चली गई तो कोई औरत आके कांधा देती है, या कोई फीमेल आके उसको ये करती है। तो वैसे ही हमें भी कोई ट्रांसजेंडर्स ये सब नहीं करते, जैसा आपका जाता है वैसा ही हमारा जाता है। अभी ट्रांसजेंडर्स के बारे में बहुत हमें फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, पर जो हमारे मुंह बोले भाई बहन या मामा चाचा जो आस पड़ोसी होते हैं, वही हमारा सब कुछ करते हैं फ्यूनरल में। ये सब लोगों ने बहुत मनगढ़ंत कहानी बनाई है। लेकिन बोला जाता है कि आप लोग जो बॉडी रहती है उसको चला के लेके जाते हैं
और मतलब किसी ने कभी देखा नहीं है, भले वो रात हो या दिन हो या कुछ भी हो। क्योंकि डिपेंड्स अपॉन कास्ट। अगर वो मुस्लिम है तो उसको फ्यूनरल बॉक्स में वो कॉफिन में लेके जाते हैं, और कॉफिन में लेके जाने के बाद में कोई फीमेल या ट्रांसजेंडर उनके पीछे नहीं जाता है, तो पता भी नहीं चलता है कि वो ट्रांसजेंडर है या मेल है या फीमेल है। और हिंदू हो तो उनको वैसे ही लेके जाते हैं जैसे नॉर्मल लोगों को लेके जाते हैं। ओके, हमें पता नहीं चलता बिकॉज आप लोग की कम्युनिटी उनके साथ नहीं जाती, इसीलिए, राइट? यस। अच्छा, ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इंसाइट। बिकॉज ये एक सवाल मैंने बहुत लोगों से पूछा है कि कभी, बिकॉज ऐसा सुना है हमने बचपन से कि हाँ, अगर आपने कभी ट्रांसजेंडर का फ्यूनरल देख लिया तो वो अब बहुत शुभ माना जाता है। अशुभ माना जाता है। हाँ, तो वो बहुत, कब, हाँ, बहुत सारे लोग बोलते कि उनको मारा पीटा जाता है, विच इज नॉट ट्रू। मतलब है ना? भी मेरी गुरु जब पास आउट हो गई थी तो मुझे आज भी याद हाँ, है, शी वाज लाइक माय मदर, माय फादर, बिकॉज शी वाज माय एवरीथिंग, माय वर्ल्ड वेयर आई कैन गो एंड शेयर एवरीथिंग विद हर। और जब वो गई, मैंने उनका, मेरी गुरु भी हिंदू थी और मैं भी हिंदू हूँ, और मुझे प्राउड है कि आई एम ए हिंदू गर्ल। और ये है कि एक लड़की को जो जो चीजें, या एक लड़के को जो जो चीजें करनी चाहिए फ्यूनरल के दौरान, वो सब चीजें मैंने की। मेरे गुरु की जो अग्नि डाक देते हैं हमारे हिंदू कल्चर में, वो सब मैंने किया। और एज अ चाइल्ड मैंने वो सब मेरे गुरु के लिए किया मतलब अगर हमको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो योर आप लोगों का फ्यूनरल नॉर्मल फ्यूनरल के जैसे ही होता है। है। और रात के टाइम नहीं, मेरे गुरु का भी मैंने किया था, वो दोपहर में ही किया था, ऐसे कहीं पे भी नहीं किया था। अच्छा, इसके सूरज डूबने के बाद में नहीं लेके जाते हैं आप? ये नेक्स्ट डे तक रखते हैं, मॉर्निंग तक? मेरी गुरु ने सुसाइड किया था, और उनकी पुलिस केस हो गई थी। 4 दिन उनकी डेड बॉडी ससुन हॉस्पिटल में डेड हाउस में थी, और उनके पेरेंट्स को पता नहीं था उनकी डेथ हो गई थी। तो मैंने कुछ ट्रांसजेंडर्स को उनके पेरेंट्स तक लेके गई थी, और वहां से मैंने बुलाया उनके पेरेंट्स को और फिर बताया कि ऐसे ऐसे डेथ हो गई। और फिर मैंने सब चीजें की, ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं किया डिफरेंस। Okay, thank you for this clarification, Sonali ji. I was also very inquisitive to know this because बचपन से हम सुनते आए हैं कि, और मैंने बहुत सारे लोगों से, फ्रेंड्स से, नेबर्स से पूछा है कि कभी आपने एक ट्रांसजेंडर का फ्यूनरल देखा है? तो किसी ने भी बोला नहीं कभी कि हाँ हमने देखा है। तो ये मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी पूछने की कि क्या है एग्जैक्टली ये मिथ और फैक्ट। तो थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन Yes. एंड ओवर टू अनु। So Sonali, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं and let's go from your education to your dance journey. Can you talk about your dance journey? How did you reach where you are in your dance space? Uh, I am a big fan of Madhuri Dixit. I really, Oh, okay. and बचपन से मुझे ये सपना था कि मुझे डांस करना है, उनके जैसे ही डांस करना है। और मुझे आज भी वो दिन याद है। फर्स्ट टाइम इन माय स्कूल माय टीचर गिव मी अपॉर्चुनिटी टू डांस इन एज अ फीमेल, इन अ फीमेल कैरेक्टर। और बहुत अच्छा लगता था जब मैं डांस करने लगी थी फर्स्ट टाइम। तो every in my school every students was trying to laugh at me, and they was teasing me। पर मेरी टीचर ने बोला कि जस्ट उसकी आर्ट देखो, कला देखो, उसके अंदर की उसकी जेंडर या उसकी सेक्सुअलिटी मत देखो, बट वी हैव टू रिस्पेक्ट आर्ट। आर्टिस्ट को कभी भी हमें बहुत रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसके अंदर का हुनर, उसके अंदर का टैलेंट वो देखना चाहिए। और वो सपोर्टिव थी मेरी टीचर, एंड शी ऑलवेज बीन सपोर्टिव टू मी फॉर माय एंटायर एजुकेशन से लेके डांस से लेके। बहुत, मैं बहुत शरारती थी बचपन से कि जब मुझे एनुअल फंक्शन में भी डांस करते थे तो मुझे मेकअप मेरी टीचर करती थी, तो मैं बोलती थी मैम लिपस्टिक, मैम थोड़ा चिक्स ये कर दो वो कर दो।
and she was very supportive. She understands everything. Like मेरी फैमिली को बाद में पता चला मेरी चीजें, बट मेरी स्कूल टीचर्स को बहुत बहुत वो मुझे बहुत समझते थे हमेशा कि ठीक है, वो उसको फीलिंग हेलो। हाँ। हाँ जी। हाँ। तो उसके बाद में जब बचपन से मुझे डांस में मुझे मारा पीटा गया था, मैं कि लड़कों ने ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए या फेमिनाइन डांस नहीं करना चाहिए। पर जब मुझे मेरे स्टेप मदर का सपोर्ट मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी मैं इस लड़ाई में मैं अकेले नहीं हूँ, मुझे एक सपोर्ट है जो मेरी स्टेप मदर का है। तो मैंने उस टाइम पे मेरे स्टेप मदर से बोला कि मुझे डांस क्लासेस की शुरुआत करनी है, मुझे बच्चों को डांस सिखाना है। और मुझे ये बहुत अच्छा था कि मुझे बॉयज एंड गर्ल्स मैं दोनों को डांस सिखाती थी। ये बहुत सपोर्टिव था। बचपन में जब मैं डांस सिखाती थी मेरे एकेडमी में, जो भी मेरे स्टूडेंट्स थे उनके फैमिलीज के दोस्त लोग बोलते थे वो कौन है सोनाली, लाइक लड़का है लड़की है समझ में नहीं आता, आप ऐसे लोगों को डांस कैसे मतलब डांस सीखने को कैसे आप अपने बच्चे भेजते हो। तो मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स बोलते थे कि वो जैसे भी हो पर हमारे बच्चों को डांस बड़ा अच्छा सिखाती है ना। ये बहुत मेरे लिए प्लस पॉइंट था। और वहां से मैं डांस सिखाना मैंने चालू किया और वहां से मैं अर्निंग मेरा चालू हो गया था, मैं पैसे कमाने लगी थी। फिर मैं आगे जाके बहुत सारे डांस शोज मैं करती थी, स्टेज परफॉर्मेंस करना मैंने चालू किया। और वहां से मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना था, मेरे पेरेंट्स के ऊपर भी मुझे डिपेंड नहीं रहना था फॉर माई एजुकेशन। आई वॉन्ट टू बी अ सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन। आई वॉन्ट टू बी अ प्राउड वुमेन। तो वो मुझे बचपन से था। और फिर मैंने पैसे इकट्ठा कर करके फिर मैंने मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, देन आई कंप्लीटेड माय एमबीए इन फाइनेंस। सो ऐसे कर करके मेरी लाइफ जर्नी वहां से स्टार्ट हो गई। So, जब आप बता रही हैं कि you have done the MBA and that's not an easy education to aspire for, and they're like two diverse, एक तरफ पे डांस और Yeah. दूसरी पे MBA। तो थोड़ा सा आप you'll throw some light on it कि why such a diverse thing, एक साइड पे डांस और दूसरी साइड पे MBA, ये दोनों साइड पे आपकी अट्रैक्शन कैसे हुई, So आप like इकट्ठे किए to reach and to do what you really wanted to do? Thank you. so अभी ये था कि my guru was when I joined at the age of 12, uh, the Hijra community, the transgender community. But my guru was very supportive to me. Like she used to say like you should not come over here and you should not get into sex work. You should concentrate on your education. You belong to a reputed family and you should not all these things. मैं उनको बहुत बोलती थी आप मुझसे जलते हो and आप आपको देखा नहीं जाता है, like you always scold me, you always dominate me. But she was trying to care about me, you know तो मुझे ये था कि मतलब मुझे कैसे भी करके मुझे एजुकेशन कंप्लीट करना है, बिकॉज एजुकेशन गिव्स यू द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेर यू कैन रिप्रेजेंट योरसेल्फ। तो एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। और वो बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि आगे जाके पढ़ाई करना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे आगे बढ़ना है। पर ये भी था कि मुझे फैमिली के ऊपर डिपेंड नहीं रहना था, मुझे एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन जैसा रहना था। और इसके लिए जैसे मैं चाहती थी वो मैं जिंदगी जीना चाहती थी, पर उसके लिए ब्रेड एंड बटर मनी भी बहुत मैटर करता था। तो इसलिए मैंने फिर डांस क्लास से लेके फिर एजुकेशन वहां से मैंने स्टार्ट किया। And did that MBA help you to get a job? नॉट येट टू बी वेरी ऑनेस्टली, Okay. So that's इतना fruitful नहीं रहा है क्योंकि लोगों की सोच भी इतनी बड़ी नहीं है। आज मैं बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनीज में जाती हूँ एंड in Pride Month they used to call me and everything. So first of all, in every corporate companies we have started one thing like
first of all, we want to make people an ally, LGBTQ community friendly. So on every table, wherever you're working on the working places, you keep some rainbow symbols. और अगर घर के बाहर आप एक rainbow flag या rainbow symbol लगाएंगे, like no, like we are straight, we are heterosexual, but we strongly support LGBTQ community Wow. and we discriminate. And ऐसे करके कोई भी बच्चा या कोई भी लड़का लड़की अपने सेक्सुअलिटी के साथ, अपने जेंडर के साथ खुल के बात कर सकता है और खुल के काम कर सकता है, और उसके साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि चलो मुझे कोई तो समझने वाला है वहां पे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये मैंने अभी कॉर्पोरेट कंपनीज में शुरुआत की है। अरे वाह, That's लवली लवली सोनाली, लवली। amazing. सोनाली, आपने बताया थोड़ी देर पहले कि आप माधुरी दीक्षित की बड़ी फैन हैं। यस। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को एक दो स्टेप माधुरी का करके बता सकती हैं अभी, कि इट्स डिफिकल्ट यू थिंक? It's very difficult for me. Okay, no worry. Next time in WoW I was there, definitely I will perform. Like if Yeah, if you give us opportunity, definitely I will dance. definitely. You're always welcome for WOW Awards, Sonali. It's my pleasure to have you. Having said that, Sonali, आजकल का जो दौर चालू है, ये पैंडेमिक का, since 2020. So your transgender community must be for sure facing some challenges in terms of medical aid. मतलब एक नॉर्मल इंसान को आज की तारीख में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वैक्सीन्स नहीं मिल रहे हैं। तो व्हाट आर द चैलेंजेस, जहां ट्रांसजेंडर को कितने चैलेंजेस आ रहे हैं, और आज के तारीख में आप लोगों की कम्युनिटी को कौन सपोर्ट दे रहा है? सी आइसोलेशन हमारे लिए नया नहीं था, पहले ब्रिटिशर्स ने आइसोलेट किया और फिर हमारे समाज ने, और फिर कोरोना ने तो बहुत आइसोलेट किया। सो बहुत प्रॉब्लम्स आए जो ट्रांसजेंडर्स, स्पेशली द ट्रांसजेंडर्स दोज आर HIV इन्फेक्टेड, और ओल्ड एज के ट्रांसजेंडर्स है जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, उनको बहुत प्रॉब्लम ये था क्योंकि उनकी जान बचाना बहुत मुश्किल था। लास्ट ईयर भी पूरे साल मैंने ट्रांस कम्युनिटी को ग्रोसरीज बांटना, उनको मेडिसिन देना, उनको हेल्प करना। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंख फेदर्स के नीचे लेती है, like that the same way I want to protect my community, and definitely I will do it. I don't assure like I will build a huge empire for my community, but at least I can put one brick from my side. इतना तो मैं कर सकती हूँ। तो ऐसे करके मैं पूरे पैंडेमिक में मैंने हेल्प किया ट्रांसजेंडर्स को, उनके फूड, उनके बेसिक नीड्स के लिए, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स के लिए उनको फैमिली सपोर्ट नहीं था, उनके भाई बहन या माँ बाप का सपोर्ट या सोसाइटी का सपोर्ट या मेंटल हेल्थ कुछ भी नहीं था। उनका जो ब्रेड एंड बटर के लिए जो इनकम सोर्स था, जो बेगिंग, सेक्स वर्क और डांसिंग, सब बंद हो गया। शादियों में या बच्चा हो गया तो ट्रांसजेंडर्स को बुलाते थे, हमारा जो बधाई कल्चर है वो भी बंद हो गया। ऊपर से लोग उनको देखना भी नहीं चाहते थे। तो अभी वो जमाना गया कि मतलब पहले जमाने में ये था, एक ट्रांसजेंडर आके ट्रांसजेंडर को हेल्प करती थी, पर अभी बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे हेट्रोसेक्सुअल सोसाइटी के लोग आके सामने आके हेल्प कर रहे हैं कि दीदी हमें हेल्प करना है, हमें ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ करना है। वैसे कर करके बहुत सारी NGOs फॉरवर्ड आए, और अभी और भी मैं अभी भी हेल्प करी हूँ। वैक्सीनेशन का अभी मैंने पुणे के मेयर से रिसेंटली बात की है। अभी ये वीक में पूरे पुणे के ट्रांसजेंडर्स का वैक्सीनेशन का भी हो जाएगा। अरे क्योंकि वाह वाह, सुपर सुपर, फैंटास्टिक। सुबह बात हो गई है कि जैसे मेल और फीमेल का वैक्सीनेशन होता है, वैसे ही ट्रांसजेंडर्स का भी वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो आज ही सुबह मेरी बात हो गई है, तो वो बोल रहे थे दे आर ऑलवेज वेलकम, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स को प्रोटेक्ट करना भी, दे आर ऑल्सो ह्यूमंस एंड they have a right to live with their dignity and identity. तो उन हर एक इंसान की जान बहुत कीमती है, बहुत एक्सपेंसिव है, और मैं डेफिनेटली ट्रांस कम्युनिटी के लिए, उनकी लाइफ के लिए मैं जरूर हेल्प करूंगी। और अभी उनका वैक्सीनेशन का भी अभी कल से मैं शुरुआत करी हूँ।
हाँ जी। स्लोली जो एज लिमिट है प्रोटोकॉल्स के थ्रू, वैसे मैं ट्रांसजेंडर्स का वैक्सीनेशन भी अभी चालू कर रही हूँ। ये तो हो गया सोनाली जी, पुणे में आप सबको देख रहे हैं। व्हाट अबाउट अदर प्लेसेस जहां ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके कैसे, मतलब अभी आज के दौर में उनको कौन सपोर्ट कर रहा है और कैसे वो लोग सरवाइव कर रहे हैं? एनी See, आइडिया? गवर्नमेंट से तो कोई हेल्प नहीं आ रही है हमारे लिए, ना कोई पैकेज है, ना या कोई योजना है, ना कुछ भी है। तो जो भी मतलब एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशंस और फाउंडेशंस, वहां से ही हमें हेल्प मिल रही है। पिछले साल भी वहां से ही हमें हेल्प मिल रही थी और अभी भी वैसा ही चल रहा है। बेड्स वगैरह मिल रहे हैं हॉस्पिटल्स में जस्ट इन नहीं, केस रिक्वायर्ड? ये बात मैं जरूर बताऊंगी। लास्ट ईयर वन ऑफ अ ट्रांसजेंडर शी डाइड इन कोरोना, and the doctor was calling me and asking me like what we should put on death certificate, male or female। मतलब जीते भी आप डिस्क्रिमिनेट करते हो, मरने के बाद में भी आप डिस्क्रिमिनेशन में ही करते हो। वो पूरी जिंदगी एक ट्रांसजेंडर थी, तो उसके मरने के बाद में भी वो ट्रांसजेंडर बोल के उसको डेथ सर्टिफिकेट मिलना ही चाहिए। तो क्या सर्टिफिकेट दिया फाइनली फिर उन्होंने ट्रांसजेंडर का? ट्रांसजेंडर बोल के डेथ सर्टिफिकेट दिया। That's Thank you so much. I'm very touched, Sonali, with every word that you're speaking. Really, ये I समझ mean, नहीं आता है कि हम डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं, और अगर डॉक्टर्स को भी जेंडर सेंसिटाइजेशन और ये सब चीजें नहीं समझ में आती, तो अभी क्या बोलूं मैं। जबकि मेरे पास इंडियन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन का जजमेंट है, मेरे पास डब्ल्यूएचओ का जजमेंट है कि बीइंग अ ट्रांसजेंडर और होमोसेक्सुअल, इट्स नॉट एनी मेंटल डिसऑर्डर और इलनेस, इट्स कंप्लीटली नेचुरल, वी आर hmm, बॉर्न दिस वे। actually, ये सब तो मैं 10 साल से मैं ये फाइट कर रही हूँ कि ट्रांसजेंडर्स के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में स्पेशली ओपीडी चाहिए, उनके लिए बेड्स चाहिए, और उनके लिए स्पेशली हॉस्पिटल्स में टॉयलेट्स चाहिए। तो ये बहुत सालों से मैं बोल रही हूँ, अभी पता नहीं, और मेरी लड़ाई बहुत आगे बहुत बड़ी है। I'm sure, I'm sure. But really, it is hats off to you for supporting the community in this way and taking lots of initiative to ensure that everybody in your community gets the dignity that they so deserve. Thank ये you, and over to Anand. Sonali, एक बहुत sensitive topic pick up करने लगी हूँ, and यस topic is the topic of abuse. यस Do you think government and society need to be sensitive to the topic of abuse in your community? Yes, we especially the law. We need to change. There should be lots of changes in law, like domestic act of violence. It's for women's, and what about trans women's? Still, it's a question mark, big question mark. And I still remember, like 4 years back, one of my trans friends, she was raped by 4 guys, and she was beaten so badly. And when I took her to the hospital, the doctor was making fun of her, like how can a transgender can get raped. And when I took her in police station, like the cops was telling me the section 376, the word rape does not even include for transgender. And then they put section 377, and these 4 guys got inside the bus, and the guys lawyers was telling like the section 377 is only for man, women and animals, it does not even include transgender, and these 4 guys got bail. So are we not a human beings? So we, when we talk about equal rights and equality, so it should be for everyone, each and every person. Sexual abuse, like especially in LGBTQ community, it happens a lot. And uh, I believe like we need to change, make a strict law for that. There Absolutely. should be a separate law, a strict law. I don't want anything different from male or female, whatever, like the male and female has the same law I want for my community also. So well said. I don't want anything different, but at least give me what is normally given to any human being. I completely and totally agree with you. Over to Shobha. Thank you. Sonali ji, we all are humans and we carry a soul.
within. Having said that, what is it that you expect from the society at large to support your community with? From the society, I just want love and respect. प्यार के आगे और रिस्पेक्ट के आगे कुछ नहीं होता है. हम हमारे बच्चों को बचपन से यही सिखाते आ रहे हैं कि बेटा वो लोग से दूर रहो, वो लोग कर्ज करते हैं या श्राप देते हैं. पर हम बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाते? वो भी हमारे जैसे ह्यूमंस है, सेम ब्लड, सेम बोन, सेम फ्लैश, एंड व्हाई वी शुड नॉट ट्रीट देम इक्वली. आज भी मैं अभी बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारी एलाय फैमिलीज ट्रांसजेंडर्स को घर पे वेलकम करते हैं और इक्वली ट्रीट करते हैं, उनका ग्रैंड वेलकम करते हैं, उनको बुलाते हैं और बच्चों से लेके ओल्ड एज तक उनको बताते हैं कि ये कुछ अलग नहीं है, हमारे जैसी है और एक फैमिली के मेंबर के जैसे हमें उनको ट्रीट करना चाहिए. Definitely, definitely. प्यार प्यार के आगे तो कुछ भी नहीं है. And I really wish that all your efforts, what you are doing, bring fruitful results. And to all the viewers who are watching and to everybody who is watching, I request all of us together to help this community do whatever is best in our capacity. So, having said that, this episode was truly an inspiring and learning from the LGBT community. The facts and the myths were really an insight. जाते जाते एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं सोनाली जी. सोनाली जी, कहा जाता है कि अभी whether you believe or no, I don't know, but just asking out of curiosity once again, कि बोला जाता है कि हर वेनेसडे को स्पेशली अगर Yeah. आपको एक ट्रांसजेंडर ₹1 दे दे तो इट इज वेरी लकी फॉर यू एंड यू शुड ऑलवेज प्रिजर्व दैट ₹1, क्योंकि वो लोग फूंक के देते हैं, पढ़ के देते हैं, तो उसमें बहुत बरकत होती है. तो उस पे आप क्या बोलना चाहेंगी मैम? To be very honestly, I don't believe in blessings or curse. मैं ये समझती हूँ हम सभी इंसान हैं और हमें इंसान की तरह ही सबको ट्रीट करना चाहिए. ट्रांसजेंडर्स को पैसे क्यों देना चाहिए ये भी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने देखो बचपन में हमने उनको बहुत चिढ़ाया है, उनका मजाक बनाया है. और जब कोई बच्चे के साथ जब उसके साथ बुलिंग होता है, हैरेसमेंट होता है, उसको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है या सोसाइटी सपोर्ट नहीं मिलता, उसका एजुकेशन स्टॉप होता है. एक बार आपका एजुकेशन स्टॉप हो गया तो आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते, कोई काम भी नहीं देता है. तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारी सोसाइटी. अगर हमें हमारे 5-10 रुपए से, हमारी छोटी एक रकम से अगर किसी के घर का चूल्हा जल रहा है या उसके ब्रेड और बटर के लिए अगर हेल्पफुल है तो हमें देना ही चाहिए. ये मैं बिलीव करती हूँ. Absolutely, सो absolutely. मच सोनाली. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग के अंदर तब से चल रहा है. यस. अगर प्यार सबको अलाउड है वाह. तो ये भी जरूरी है कि every human being on this earth is allowed to fall in love. यस, ट्रू. तो क्या सोनाली ऐसा होता है कि आपकी कम्युनिटी में falling in love is very conditional because we are living in a very conditional society? और शायद ये लव शब्द के स्टोरी के ऊपर आप थोड़ी सी लाइट डाल दें तो लोगों को ये भी समझ में आएगा कि प्यार कुछ अलग नहीं है. शुक्रिया. लास्ट 2018 में जब सेक्शन 377 जो हमारा डिक्रिमिनलाइज हो गया, अभी मैं भी बोल सकती हूँ एक लड़के को देखा तो लीगल लगा. इवन आई क्या हैव. बात है. Very well said, very well said. और प्यार के बारे में, लव एंड रोमांस के बारे में ऐसा नहीं है कि मेरी पास्ट में कभी लव रिलेशनशिप या अफेयर्स नहीं हुए. मेरी लाइफ में भी पास्ट में बहुत अफेयर्स हुए, प्यार हुए, ब्रेकअप हुआ. पर जो भी लड़का स्पेशली जो भी मेरी लाइफ में आया, ट्रांसजेंडर को जो प्यार करने वाला लड़का होता है वो स्ट्रेट हेट्रोसेक्सुअल सोसाइटी से ही बिलोंग करता है, बिकॉज दे आर अट्रैक्ट टू आवर फेमिनिटी. ठीक है. तो वो लड़का हमेशा यही बोलता है कि आप मुझे क्या दे सकती हो, बच्चा दे सकती हो क्या.
और वो रिलेशन वहां पे खत्म हो जाता है, ठीक है। और इसी ब्रेकअप की वजह से बहुत सारी ट्रांसजेंडर्स सुसाइड करते हैं, उनका मर्डर होता है, आत्महत्या होती है, और उनका एफआईआर कहीं दर्ज नहीं किया जाता है और जस्टिस नहीं मिलता। इसलिए मैं हर साल हमारे पूना में संभाजी पार्क के यहाँ पे ट्रांसजेंडर रिमेम्बरेंस डे के दिन मैं कैंडल विजुअल करती हूँ, इंटरनेशनल कैंडल विजुअल डे। फाइन, लाइक आज इतनी सारी हमने पहले ही ट्रांस ब्रदर्स और सिस्टर्स की जान गंवाई है, पर इसके आगे नहीं। जो कुछ मैंने सहा है, जो कुछ मेरी कम्युनिटी ने सहा है, वो मेरे आने वाले जनरेशन को ना सहना पड़े, इसलिए मैं हर साल कैंडल विजुअल करती हूँ, लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम ये स्पेशली ट्रांसजेंडर्स के लिए है कि हमें भी प्यार करने का अधिकार है, हमें अपनी जिंदगी अपने आइडेंटिटी के साथ, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ हमें जीने का पूरा अधिकार है, और ये अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। दिस इज माय फंडामेंटल राइट्स, दिस इज माय ह्यूमन राइट्स। वेरी वेल सोनाली, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने हर सवाल का जवाब इतनी सफाई से और इतने गहराई से मतलब दिल की हर गहराई से, और literally I'm sure people who are hearing it need to get a few things that I'm going to recapture again. One second before that, Anu, can I just ask Sonali one more last question जाते जाते? Yes. Of course. सोनाली जी, आपने बोला कि आपके जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, दे आर नाउ स्टार्टिंग टू upskill themselves in terms of education, in terms of other skills that they are learning, and you're helping them learn. Yes. So this transgender community, first I want to know whether it's trans women or trans men, what kind of skills are they looking for, and what is it that we as a society can do to help you people either get jobs, and also what kind of skills are you upgrading them with, because you know them better as a trans woman or a trans man. So you will know the skills that they are like, for example, cricket for boys. Okay, so is the transgender community boys, the male versions, are they also playing cricket? Are they getting opportunities to play? And how is it going all about? जॉब अपॉर्चुनिटीज, पहली बात तो ये बताना चाहूंगी मैं कि आजकल के बच्चे माँ बाप से संस्कार नहीं सीखते, सोशल मीडिया, इंटरनेट, नेटफ्लिक्स, अमेजोन से संस्कार सीखते क्या हैं। बात है, क्या बात है, बहुत सही बोला, बहुत सही, एकदम टू द पॉइंट। या हम लोग जो सीरियल्स में या मूवीज में ये सब चीजें, चार चार बॉयफ्रेंड, चार चार गर्लफ्रेंड, चार चार हस्बैंड, चार चार वाइफ, ये सब दिखाते हैं, तो हमारे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का प्यार क्यों नहीं दिखाते हैं? मेरी बहुत सारी ट्रांसजेंडर फ्रेंड्स हैं जो मेकअप आर्टिस्ट है, फैशन डिजाइनर। सॉरी, लेकिन वो एक अस्तित्व स्त्री का या समथिंग एक सीरियल चालू है ना, विच इज ऑन ट्रांसजेंडर एंड शी इज गेटिंग मैरिड इन द फैमिली एंड। पर ये भी है कि हमेशा एक सिसजेंडर वुमेन को ट्रांसजेंडर का रोल दिया जाता है, या किसी सिसजेंडर मैन को क्रॉस ड्रेसिंग करके ट्रांसजेंडर दिखाया जाता है, पर रियल ट्रांसजेंडर्स को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। हाँ, वो है, आज भी कोई ट्रांसजेंडर्स को प्लेटफॉर्म नहीं देता है। ये बहुत जरूरी है कि ट्रांसजेंडर्स को कोई आगे आके, मुझे आज भी याद है कि स्पेशली इन पुणे, मेरे पुणे में जब वाव अवार्ड्स हो गया था, जो पहली बार एक ट्रांसजेंडर, क्योंकि पुणे के लोगों को पता ही नहीं कि ट्रांसजेंडर्स होते क्या है, या वो even transgenders also exist and they are also part of the society. आज भी मुझे याद है कि जब मैं पहली बार वाव अवार्ड्स में आई थी और सबकी आईब्रोज 360 डिग्रीज पे, ये ट्रांसजेंडर्स यहाँ पे कर क्या रहे हैं? और इतना बड़ा दिल शोभा जी का था कि मुझे आज भी याद है कि उन्होंने बहुत एज ए ह्यूमन, ठीक है, एज ए ह्यूमन वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और लोगों का ये रिएक्शन था कि पहली बार उनके लिए भी बहुत बड़े चेंज था कि जब वाव अवार्ड्स ने एक प्लेटफॉर्म दिया और ट्रांसजेंडर्स को बुलाया और उनको सम्मान दिया,
उसके बाद में बहुत सारी इवेंट्स हो गए, अवार्ड्स हो गया, पर पहला ये था कि जो वाव अवार्ड्स में फर्स्ट टाइम ट्रांसजेंडर कमिंग एंड गेटिंग अ प्लेटफॉर्म, सो हमें हमारा दिल बहुत बड़ा करना चाहिए वाव की तरह, है ना? Thank you so much, Sonali ji. Thank you. Thank you so much. So over to Anu. सो सोनाली ने कुछ चीजें कही, उनको फिर से देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अलग होना कोई गलत बात नहीं, या अच्छी बात करी। या तो डेवलपमेंट के बारे में अभी ट्रांसजेंडर्स को हम लोग मेकअप आर्टिस्ट का ये स्किल दे रहे हैं, and we are giving them a training of a makeup artist, and Aditi Govitikar, she has promised me like she's a Miss Universe, I know, and she's a very good friend of mine, and she promised me like in future, like once the training is done, like we will give them a job opportunity in our Bollywood industry. So Superb. it's a very plus point for my community. I am so lucky, touchwood. I got such a beautiful friend circle, those who understand me and my community, and ready to accept my entire community as a human being. And I want more and more people, such ally people who understand LGBT. We love you. We love you, Sonali ji. I love you too. एंड आई लव व्हाट सोनाली सेड कि अलग होना कोई गलत बात नहीं है, but what difference you make and how she's making in the society makes all the difference, guys. She's a lady of true substance, because she has not just made a difference in the world, but she's also made a difference and understood that the education is equally important. She's not saying education important nahi hai, and she's not just sitting with that education and saying कि मेरा हो गया अभी, हाँ अभी तुम लोग देख लो कैसे करना है. No, she's accepted her community, she's accepted that she is different, and she's out there to make a difference for each and every one of us. She's not just making a difference to the community, she's making a difference to the whole society. Society. Absolutely. Society. Talk. One more thing I want to add, Sure. स्पेशली लाइक जब हम एजुकेशन लेते हैं, ठीक है, हम यूनिवर्सिटी में हम लोग ये सिखाते हैं कि ठीक है, हमें बिजनेस में ये करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें आगे कैसे बढ़ना है, ये सब चीजें हम सिखाते हैं। पर हम ये सिखाते हैं कि इंसान को इंसान के जैसा कैसे ट्रीट करना है, ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता है। और हमें बच्चों को ये सिखाना है कि हमें ह्यूमंस को ह्यूमन जैसा ही ट्रीट करना चाहिए। But Sonali ji, nowadays a lot of corporates have started opening up a certain segment for transgenders, because I also personally believe that transgenders, some of the transgenders that I have come across also, they speak so well, they are so well educated, and there is no reason why the society should not open up some doors for your community to give them the jobs. So I think little that I know, a few call centers and a few corporates have opened certain doors for the transgenders. Is that true? Yes, true. Many of my trans friends work in corporate companies and they are very close to me. But again, the same thing about the bread and butter. Like more than a cisgender women, we have to spend so much on our femininity just for who we want to be as a completely women, like gender reassignment surgery and everything. Like we have to spend a lot of money. So again, in companies or we don't get so much of salaries also. Is there somebody in your community or outside in the society who is actually taking an initiative to train and groom your community, to groom, give them personal grooming in terms of dressing, in terms of makeup, in terms of conversation, talking skills? Is there some image development or personality development from the Yes, society that is training you? of a few NGOs we have started already to give them a skill development like tailoring, like makeup artist or fashion designing. So we have already started. Great, great, super, fantastic, very well said. And not only skill development, but after that, like we are also giving them a job opportunities where they can lead a normal life like a normal human being. Great, fantastic.
Thank you so much. So, this episode was truly inspiring, and learning from the LGBT community, the facts and the myths, was really an insight from Sonali ji. Thank you, Sonali, for gracing our show. And we sincerely, from the bottom of our hearts, wish that your dream to give transgenders a name and work in the society is successful with the support of our government and society at large. So, wish you all the very best, and over to Anu. I just want to thank you. I think this was the most amazing session which touched my heart. Absolutely, absolutely. Every word of it, every word of it. I'm grateful to you, Sonali. I'm grateful to you, Shobha, Thank for you. uh, for for being here and for listening and being sensitive. And it takes a heart to open a heart. And so that's really, really important part of what you're doing. Thank you so much. Thank you so much, Sonali ji. Thank you to all our guests for watching this. Thank you, Anu, as always, for your time and effort. Thank you to all our viewers for supporting us. Stay blessed, stay happy, and stay safe. See you guys Yeah. very soon. Bye bye. Thank you, Sonali ji, once again. Thank you. Thank you. Bye bye.